दोस्तों, आजकल के हालात में आप सबके लिए ज़मीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश के वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। Only happen on the streets of New York. We are in a yellow cab on the 51st East Street and 3rd Avenue, and just check out who is with me in the cab. Hello, 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 हेलो हेलो hello. देखा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर ना कहना हो रहा है कि नहीं हो रहा. I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. Hello, my name is Anupam Kher. I am an Indian actor. I have been in movies for the last 35 years. I have done about 516 films. I also run an acting school called Actor Prepares for the last 15 years. But as they say, life is about reinventing. In this period of lockdown, we decided that we must do, where we can't assemble so many people together, so many students together. So we decided to do an online course. And we discovered that it's a great form of communication in today's time. Now, acting does not only teach you about how to emote, it also teaches you about life. So come, join Actor Prepares online course, because we bring out the actor in you. हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे न्यूयॉर्क से मुंबई आए 1 महीना हो गया। 20 मार्च को मैं दोपहर को 2 बजे एयर इंडिया की फ़्लाइट से हिंदुस्तान पहुंचा था और उसके 1 घंटे बाद घर पहुंच गया था। तब से लेकर आज तक मैंने अपने घर की 4 दीवारी के बाहर कदम रखा ही नहीं है। बैल्कनी में गया था एक बार अपने दोस्त अनिल कपूर से बात करने, और वरना मैं अपने ही घर में हूँ। इस बात से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम ह्यूमन बीइंग्स
अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। और मैं बहुत शांत हूं, मैं बिल्कुल भी अशांत नहीं हुआ, बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुआ। हाँ, दिन में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि थोड़ा सा इम्पेशेंस होती है, थोड़ी बहुत घबराहट होती है, मगर वो तो जिंदगी के हर मोड़ पे होती है। जिंदगी के हर लम्हे में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आता है कि आपको थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन इस एक महीने ने मुझे ये सिखाया कि सहनशीलता में बड़ी पावर है, पेशेंस में बड़ी पावर है। इस एक महीने ने मुझे सिखाया कि कंपैशन क्या होता है, निस्वार्थ भाव से दुनिया को पहचानना, उनको जानना, उनको मोहब्बत करना, उनको प्यार करना क्या होता है। इस एक महीने ने मुझे सिखाया कि भाई, इंसान के अलावा भी और ताकतें हैं और इनहेबिटेंट्स हैं जो इस मदर अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं। उनका भी सत्कार करना, उनकी भी इज्जत करना, उनको भी अपना स्पेस देना, ये सब बहुत जरूरी है। इस एक महीने ने मुझे सिखाया कि लोगों को मोहब्बत की दृष्टि से देखना, उनकी तरफ उदारता दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक महीने ने मुझे सिखाया कि जो नीचे सफाई कर्मचारी जाते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया के लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस एक महीने में जो मुझे शिक्षा मिली है, वो मुझे पूरी जिंदगी में नहीं मिली है। और आई एम श्योर, अगर आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये लॉकडाउन पीरियड में आपने जो सीखा है, वो आने वाली पुश्तों को इस बात का फायदा होगा। मेरे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। जय हो। मजा आया। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि एक्चुअली दुनिया में सब कुछ लॉकडाउन में नहीं है। जैसे रोज सुबह सूरज का उदय होना लॉकडाउन में नहीं है, मोहब्बत या प्यार का लॉकडाउन नहीं हुआ है, फैमिली के साथ मिलकर वक्त गुजारने का भी लॉकडाउन नहीं हुआ है, किसी के प्रति दया का भाव या काइंडनेस दिखाने का भी लॉकडाउन नहीं है, क्रिएटिविटी का लॉकडाउन नहीं है, आपस में बातचीत करना फोन पर या आमने सामने, इसका भी लॉकडाउन नहीं है, किताबें पढ़ने के लिए भी लॉकडाउन नहीं हुआ है, अच्छी चीजों के बारे में सोचने का भी लॉकडाउन नहीं है, आपसी रिश्ते बरकरार रखना लॉकडाउन में नहीं आता, पूजा करना या प्रे करने के लिए तो बिल्कुल ही लॉकडाउन नहीं है, उम्मीद करना, होप करना, इसका लॉकडाउन नहीं है। दरअसल लॉकडाउन तो वो सब कुछ करने का एक मौका है जो हम हमेशा करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। बस अब मन के लॉक को खोलना पड़ेगा। अनलॉक योरसेल्फ, लॉकडाउन विल नॉट मैटर। तो दोस्तों, मैं क्या सोच रहा था ना कि आजकल हम घर की चार दीवारी में फंसे हुए हैं, मतलब मजबूरी में है ना, अपनी खुशी से तो नहीं है ना। इतने दिन हो गए लॉकडाउन हुए, कुछ लोग सेल्फ क्वारंटीन में हैं, तो इससे जो है पॉजिटिव रहने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि इस सारी बातों से हमारी इनसिक्योरिटी बढ़े, मन में अलग अलग विचार आते होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं, ये मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनका सब ठीक हो, ये ठीक रहेंगे तो नहीं, मेरा परिवार छोटा, अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, मेरा सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में ये विचार चलते होंगे। इससे आपके मानसिक संतुलन और मेंटल बैलेंस के बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। उसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, कि आपको उदासी महसूस हो सकती है, समझ नहीं आ सकता, लगता है क्या होगा यार इसका फ्यूचर का, कहाँ जाएंगे, हमारी क्या होगा यार, ये मेरे वक्त पे ऐसा होना था जब मेरा कुछ होने वाला था लाइफ में। मतलब हर चीज़ जो है आपको घबराहट दिला सकती है। और जैसे ही ऐसा होना शुरू हो, घर के किसी सदस्य को, अपने किसी दोस्त को बिठाकर उससे बात करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव बातें करना शुरू, नॉर्मल बातें करना शुरू कर दीजिए, कोई भी बचपन की बातें शुरू दीजिए। तो और फिर या तो किसी को फ़ोन उठा लीजिए और उससे कुछ हंसते हुए बातें करें, कॉमेडी देखना शुरू कर दीजिए टीवी पर, कुछ भी, किसी तरीके से अपना ध्यान बांटना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो तो वो करिए जो मैं करता हूँ, मैं शीशे के आगे, अगर मतलब दोस्तों से बात नहीं हो रही तो शीशे के सामने खड़ा होकर कहता हूँ सब ठीक होगा,
फिक्र मत कर, चुप कर, सब ठीक होगा। ज्यादा डिप्रेशन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लो महसूस करने की जरूरत नहीं है। अनुपम खेर, बिट्टू, मिस्टर खेर, अनुपम, सब ठीक होगा। कहां से आया था, कहां तक पहुंचा है? ऑप्टिमिस्टिक रह, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड मिस्टर खेर, सब ठीक होगा। चुप, ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। अपने आप को डांटो, अपने आप को गुस्से हो जाओ अपने आप से। जैसे ही आप अपने आप से गुस्से होंगे, जैसे ही अपने आप को डांटना शुरू करेंगे, आपको हंसी आएगी, सब ठीक हो जाएगा। मेंटल बैलेंस बरकरार रखना बहुत जरूरी है। ओके ओके, यू गॉट इट, यू गॉट इट।